You're not a result of an accident. आप एक घटना का परिणाम नहीं हो। You were intelligent, designed by a creator. आप बुद्धिमानी के द्वारा सृष्टि किए गए हो, एक रचनाकार के द्वारा। बाइबल पहले से बताती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो नर और नारी बनाया। The Bible tells us from the beginning, when God made man, He made them man and woman. That means, and then God said, "Be fruitful and multiply." और फिर परमेश्वर ने कहा, फलवंत हो, पृथ्वी पे भर जाओ। Okay, so a male needs a female to procreate and to grow, to produce more kids. एक पुरुष को एक महिला की आवश्यकता है, एक और बच्चों को जन्म देने के लिए, बच्चों को। But if evolution is true, लेकिन अगर एवोल्यूशन सच्चा है, do you know there are many scientists who don't believe in evolution? आप जानते हैं बहुत से साइंटिस्ट हैं जो एवोल्यूशन को नहीं मानते। There is a big problem with evolution. एवोल्यूशन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है that scientists have discovered, and this is what I want to show you. Can you जो put that? साइंटिस्ट ने पता लगा, मैं आपको दिखाना The problem, वो समस्या, okay, almost all forms of complex life have both male and female: horses, dogs, humans, fish, moths, monkeys, elephants, birds, etc. The male needs the female to reproduce, and the female needs the male. One cannot carry on life without the other. But if evolution were true, then here's the question: which came first, male or female? लगभग सभी जटिल जीवों में नर और मादा दोनों होते हैं। घोड़े, कुत्ते, मनुष्य, मछलियां, बंदर, हाथी, पक्षी आदि। नर को संतान उत्पन्न करने के लिए मादा की आवश्यकता होती है और मादा को संतान उत्पन्न करने के लिए नर की आवश्यकता होती है। एक के बिना दूसरा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यदि विकासवाद, एवोल्यूशन सही होता तो प्रश्न उठता है कि पहले कौन आया, नर या मादा? If the male of the species came into being before a female, how did he reproduce? And if the female came first, how did she reproduce without a male? And more importantly, how is it possible that both male and female came into existence randomly, yet their reproductive system are so complex, coordinated and complementary? The answer is simple. There is a designer. God made them male and female by intelligent, purposeful design. यदि किसी जाति ने नर पहले अस्तित्व में आया तो उसने बिना मादा के कैसे संतान उत्पन्न की, और यदि मादा पहले आई तो उसने बिना नर के संतान कैसे उत्पन्न की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कैसे संभव है कि नर और मादा दोनों अचानक उत्पन्न हो जाएं और फिर भी उनके जन्म तंत्र इतने जटिल, सटीक और एक दूसरे के पूरक हो? उत्तर स्पष्ट है, एक बुद्धिमान सृष्टिकर्ता है। परमेश्वर ने उन्हें उद्देश्य के साथ नर और नारी बनाया है। You're not a result of an accident. आप एक घटना का परिणाम नहीं हो। You were intelligent, designed by a creator. आप बुद्धिमानी के द्वारा सृष्टि किए गए हो, एक रचनाकार के द्वारा। एक बार एक साइंटिस्ट, दो दोस्त थे, दोनों साइंटिस्ट थे। एक एवोल्यूशन को मानता था, दूसरा एवोल्यूशन को नहीं मानता था। Two scientist friends, one believed in evolution, the other did not. तो उसने केक, जो मानता था कि एवोल्यूशन नहीं है, परमेश्वर पे वो मानता था, उसने केक बनाया। The one who believed in God, he made a cake, और टेबल पे रखा, kept it on the table. और उसका दोस्त आया, उसने केक खाया, कह रहा बहुत बढ़िया केक है, किसने बनाया है? And his friend came and said, "It's a very good cake. Who made it?" उसने कहा नहीं, किसी ने नहीं बनाया। He said, "No one made it." कह रहा मैंने फ्रिज में बेकिंग पाउडर, फ्लावर, चीनी, सिरप रखा था, एक एक्सप्लोजन हुआ, केक बन गया। He said, "I had kept baking powder, soda and all these things in the fridge, and there was an explosion and the cake came out." कह रहा क्या बकवास कर रहा है? He said, "What nonsense are you saying?" ऐसा कैसे हो सकता है कि एक धमाका हुआ और बिल्कुल सही मात्रा में चीनी और सही मात्रा में मैदा और सही मात्रा में बेकिंग पाउडर? He said, "How is it possible that an explosion happened and in the right measure you put sugar in this right measure?" और उसके बाद इतने अच्छे अलाइनमेंट में टेबल के ऊपर आ गया। And it got such a good shape and an alignment on the table. कह रहा मजाक क्यों कर रहा है? He said, "Why are you joking?" उसने कहा मजाक तो तू कर रहा है जब तू कह रहा है कि इतना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन डिजाइन एक धमाके के द्वारा आ गया। He said, "You are joking when you are saying such a complex human design came through an explosion." The more you study science carefully,
the more you will believe that there is an intelligent designer who created you with a purpose. जितना ज्यादा आप साइंस पढ़ोगे उतना ज्यादा जान लोगे कि एक बुद्धिमान सृष्टि करता है जिसने एक मकसद के साथ आपको बनाया है. Okay? Human brain is a miracle how it functions. मनुष्य का जो दिमाग है वो एक चमत्कार है कैसे काम करता है. Human eyes are a miracle. If you read, मनुष्य आप बेस्ट से बेस्ट कैमरा ले लो, आज जल्दी से घुमाओ, उसको टाइम लगता है, ब्लरी हो जाता है, पहले थोड़ी देर में फोकस आता है. अरे आप आंखें जहां घुमाओ परफेक्ट दिखता है. मनुष्य की आंखें एक चमत्कार है. Best to best cameras take time focusing and adjusting, but when you look around, you are able to focus instantly. See, the problem with science is science can only tell you how, science cannot tell you why. साइंस की दिक्कत यह है कि वो आपको कैसे बता सकता है, क्यों नहीं बता सकता. साइंस ये तो बता सकता है कि केक के अंदर कितना प्रतिशत प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कितना बेकिंग सोडा है, मगर साइंस ये नहीं बता सकता कि किसने वो केक बना के वहां रखा. उसके लिए आपको परमेश्वर का वचन चाहिए. Science can tell you how much measure of ingredients are in a cake, but who made the cake? For that you need the Bible, the Word of God. हालेलुया. और एक और परमेश्वर एक साइंटिस्ट थे, वो एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं. Another scientist, a mathematician. एंड उन्होंने जो सारी भविष्यवाणियां जो यीशु मसीह के लिए कही गई, And all the prophecies that were done for Jesus, जब उन्होंने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली मैथमेटिक्स से कि कैसे, और हजारों साल पहले, डू यू नो जीसस यूज्ड टू से दैट all this was written about me. when he took out the probability of all that was prophesied for him over thousands of years, यीशु ने बोला ये सब मेरे लिए भविष्यवाणी की गई थी. Can you put Peter W. Stoner? Okay? तो उन्होंने एक समझाने के लिए आपको कि आप समझ सको just to help कि you तुक्का understand नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी प्रोफेसीज को पूरा किया. that this is not a guess that Jesus fulfilled all the prophecies. When you study probability in mathematics, जब आप probability को पढ़ेंगे mathematics में, देखो उन्होंने क्या किया. He is a mathematician, astronomer. He applies the science of probability to access the likelihood of specific biblical prophecies being fulfilled. He meticulously calculates the odds of various Old Testament. So अलग अलग जो प्रभु यीशु, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, अलग अलग जो भविष्यवाणी की गई उनको समझाने के लिए उन्होंने कहा अगर टेक्सास में, ओके, टेक्सास का एरिया कितना हुआ सोच लो आप, पूरे टेक्सास में अगर डॉलर के जो सिक्के होते हैं अगर वो 2 फीट तक उठा के पूरा टेक्सास को भर दिया जाए और उसमें से केवल एक सिक्के पे एक मार्क लगाया जाए और उन पूरे टेक्सास में जो सिक्के हैं उनमें से उनको छुपा दिया जाए और एक बंदे को आंख में पट्टी बांध दी जाए और जो सिक्का वो चुने वो निकल जाए, तो तब वो प्रोफेसी हो सकती है. That's the probability. he said the probability is such if you fill the entire state of Texas with coins over to the knees and you put blindfold on a guy and put a mark on one coin and he finds it, that's the probability of Jesus being The born. probability is 1 in 10 to the power 17th. 17 गुना मल्टीप्लाई होने के बाद एक बार ही उसमें हो सकता है, ये संभव है. सरल भाषा में बताऊं तो इसको फेक करना इम्पॉसिबल है. It is impossible to fake this. यानी प्रभु यीशु मसीह सच में वो है जो वचन कहता है वो है. It means really Jesus is who the word says he is. ओके, मैंने अभी तक वचन शुरू नहीं किया. I haven't started the word yet. I love to teach the word, but I'm just talking to some skeptics, trying to encourage them. मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ वो लोग जो संदेह करते हैं उस पे. And if you are a real skeptic, अगर सच में आप ऐसे लोग हो जो ढूंढते हो, खोजी लोग हो, then really search. तो सच में खोजो. Don't come to a conclusion because there is a loud noise outside that is screaming lies. निष्कर्ष पे इसलिए मत पहुंचो कि बाहर एक बहुत हल्ला मचाने वाली आवाज है जो झूठ पे झूठ चिल्ला रही है.
झूठ कितना भी चिल्ला ले, झूठ ही रहता है. No matter how much lie screams, it remains a lie. ओके. और सत्य है तो टेस्ट करो तो पता लग जाएगा. And if it is the truth, test it अगर out. कोई भी स्केप्टिक यहाँ पे है, आज घर जाना और वो प्रार्थना करना जो साधु सुंदर सिंह जी ने करी. If there is any skeptic here today, when you go home, pray the prayer that Sadhu Sundar Singh prayed. ओके. तब तो कोई नहीं आपको झुठला सकता ना. Then no one can deny it, right? यही प्रार्थना मैंने करी थी. That is the prayer that I did. बोलना अगर है कोई सच्चा, Say, if there is anyone who is real, अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट कर. show yourself to me in my life. मैं उस परमेश्वर के साथ साक्षात्कार चाहता हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया. Say, I want to encounter the God who made the heavens and the earth. ओके. उसके बाद उसका काम है. After that, it is his job. उसके बाद उसका काम है. It's his job then. मैं वचन में जाऊंगा पर उससे पहले एक अपना साक्षात्कार बताता हूं. I'll go into the word, but I'll tell you an 19 encounter. साल से जब मैं बहुत छोटा था, Since 19 years, when I हमारे was very घर young, में एक विनोद पंडित जी हैं, वो आते थे. Vinod Pandit ji used to come to our house. बहुत प्यारे बढ़िया बंदे हैं. Very loving man, very good man. तो मैं उनसे सवाल पूछा करता था. I used to ask him questions. मैं परमेश्वर को जानना, मैं कैसे दिखते हैं, कैसे उनकी आवाज़ I है. want to know God. How can I know him? What does it sound like? तो उन्होंने मुझे कई एक्सरसाइजेज सिखाई So he taught me many exercises. कि आप ध्यान ऐसे लगाओ. Oh, you should meditate like this. फिर उसके बाद हमारे पड़ोस में एक पटवाल अंकल करके रहते हैं. After that, there's a neighbor Patwala. उन्होंने एक गुरुजी को धारण किया था, तो मैं उनके पास बैठता था, उनसे सीखता था. He used to go to a Guruji, so I would go to him and learn.